Ready, Ashish? Yes, uncle. Throughout the year, I normally speak from Old Testament. पूरे वर्ष में मैं करीबन हमेशा ही पुराने नियम से वचन देता हूँ. In Old Testament, you have a lot of things to learn about God and His intervention with the human beings. पुराने नियम में हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कैसे मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ने अपना कार्य किया. But this is the time of the year where we cannot go back to Old Testament, but let's recon with the New Testament. लेकिन अब वर्ष का वो समय है कि हम पुराने नियम में ज्यादा नहीं लेकिन नए नियम में से ज्यादा वचन देखेंगे. Our focus will be on Jesus more than anything else. और हमारा जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा यीशु मसीह पर ही रहेगा. In the New Testament, if you read, one phrase comes again and again. अगर नए नियम में देखेंगे तो एक वाक्य है, शब्द जो बार बार आता है. That the word is in Christ. और वो शब्द है कि मसीह में. If anyone is in Christ, is a new creation. अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है. And therefore there is no condemnation for those who are in Christ. और इसलिए जो लोग अब मसीह में हैं उनके लिए अब कोई मृत्यु का भय नहीं है. Now God is reconciling the world to Himself in Christ. और यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर जो है वो पूरे दुनिया का मेल मिलाप अपने में कर रहे हैं. So in Christ, the phrase in Christ comes very often in the New Testament. और इसलिए मसीह में जो शब्द है वो अक्सर नए नियम में देखने को मिलेगा. In fact, its phrase comes 92 times in the New Testament. और दरअसल 92 बार ये शब्द नए नियम में देखने को मिलेगा. Out of 92, 89 times it was used by Paul. और Apostles, yeah. उसमें से 79 बार जो है इस शब्द का प्रयोग पौलुस ने किया है. And 3 times it is used by Peter. और 3 बार इसको पतरस ने इसका प्रयोग किया. In Christ actually means living in relationship with Christ. और मसीह में होने का तात्पर्य है कि मसीह के साथ एक संबंध में होकर के जीवन व्यतीत करना. Only in Christ you get all these things. You become a new creation. You get away from condemnation. Everything happens in Christ. सिर्फ यीशु मसीह में आकर ही नया जीवन हमको मिलता है और मृत्यु से हमें मृत्यु के भय से हमें छुटकारा मिलता है. So the question is, who is Christ? Why should I have the relationship with Christ? सवाल ये उठता है कि कौन है यीशु मसीह और क्यों उसके साथ एक संबंध बनाने की मुझे आवश्यकता है. Is there any blessing in having a relationship with Him? क्या कोई ऐसा आशीष का कारण है जो मुझे प्राप्त होगी यदि मैं उसके साथ एक संबंध में रहता हूँ? Or will I lose anything if I do not have a relationship with Him? और अगर उसके साथ मेरा एक संबंध नहीं है तो क्या कुछ चीजें हैं मुझसे छूट जाएंगी? So today we will try to find the answers to these two questions. तो आज हम इन 2 सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे. Number 1 is, who is Jesus? Why should I have a relationship with Him? पहली बात तो ये कि कौन है यीशु मसीह और उसके साथ मुझे एक संबंध बनाने की आवश्यकता क्यों है? Now, over the centuries, many nations, many people ask this question, who is Jesus? और पुराने जमाने में, बीते जमाने में बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि यीशु मसीह कौन है. And even during Jesus' time on earth, His disciples were asking the same question, who is Jesus? और जब यीशु मसीह का सेवकाई का समय था पृथ्वी पर तब उसके शिष्यों ने भी ये सवाल पूछा कि यीशु कौन है. Jesus' disciples saw so many miracles and were wondering, who is this person? और यीशु के शिष्यों ने बहुत से आश्चर्य कर्म देखे और वो पूछने लगे कि ये कौन है ये व्यक्ति. Once Jesus was in a boat with His disciples. एक बार यीशु एक नाव में थे अपने शिष्यों के साथ. Suddenly there was a big wind. और एक बहुत आंधी सी आई वहां पे. And waves broke over the boat, and the boat was about to be sank. और लहरें जो थी वो ऊंची ऊंची उठने लगी नाव के ऊपर और वो नाव बिल्कुल डूबने सी लगी थी. They cried out to Jesus. और वो यीशु के पास रोते हुए आए. And Jesus got up and rebuked wind and waves. और यीशु ने उठ के उन आंधी और लहरों को डांटा. And the whole place became very calm and quiet. और फिर वहां पे शांति हो गई. The disciples asked each other, who is this person? Even the wind and the waves obey him. और
जो शिष्य थे वो पूछने लगे, कौन है ये व्यक्ति कि इस आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। So one of the things we should learn from this parable is that this incident is Jesus had power over the nature. और इस घटना से हम इस बात को सीखते हैं कि प्रकृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है। The portion that we read in the scripture talks about another incident. जो हमने आज वचन जो पढ़ा गया उसमें एक दूसरी घटना का वर्णन है। Jesus went into a synagogue. यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के भवन में गए, While he was teaching the people there, और जब वो वहां पे लोगों को पढ़ा रहे थे, there was a person possessed by evil spirit sitting in that place. और तो वहां पर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। As soon as he saw Jesus, he started shouting, Jesus of Nazareth, why are you here to destroy us? और जब उसने यीशु को देखा तो वो चिल्लाने लगा कि यीशु नासरी, तू यहाँ पे क्यों है? क्या He said, तू मुझे मारने आया है? He said, I know who you are. You are the Holy One of Israel, Holy One of God. और उसने कहा, मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का पवित्र व्यक्ति है। Jesus said, be quiet, come out of that man. और यीशु ने कहा कि शांत हो जाओ और उस मनुष्य से बाहर निकल आओ। The Holy Spirit, the evil spirit immediately left him. और तुरंत दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। The people are all amazed and asked each other, what kind of teaching is this? और वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहने ये किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे दी गई है। He even gave orders to the evil spirit and they obey him. और ये तो जो है वो दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा दे रहा है और उन्होंने उसका पालन किया। Who is this man? Even though evil spirit obey him. कौन है व्यक्ति कि दुष्ट आत्मा भी इसके आज्ञा का पालन कर रही है? So we learned that he had authority over the evil spirit. तो हम यह सीखा कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी उसका सामर्थ्य है। When one day when he was dining with a Pharisee in a Pharisee's house, एक दिन जब वो एक फरीसी के घर पे भोजन कर रहे थे, a woman who was living a sinful life, एक स्त्री जो कि एक पाप का जीवन व्यतीत कर रही थी, brought an alabaster jar of perfume. तो वो एक बहुत महंगा इत्र, बहुत Hmm. महंगा इत्र का बर्तन लेके आई And stood behind him, wet his feet with her tears and wiped his feet with her hair. और फिर उसने उसके पैरों को धोया और फिर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा यीशु के। Jesus turned around and said, daughter, your sins are forgiven. और यीशु ने पलट के उससे कहा कि बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। The guests who were with him asked him, who is this? He even forgives sins. तो जो वहां पे अतिथि लोग बैठे थे उन्होंने कहा, ये कौन व्यक्ति है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है? So he had the power to forgive sins. उसके पास सामर्थ है पापों को क्षमा करने का। He had authority over sin. और उसके पास अधिकार है पाप के ऊपर। And he had authority over the death. और मृत्यु के ऊपर भी उसका अधिकार है। In the Gospels we see he raised 3 dead people back to life. और देखते हैं वचन में कि 3 लोगों को उसने मुर्दों में से जीवित किया था। So when he went to Jerusalem on a donkey, the people were shouting and screaming, Hosanna, Hosanna. जब वो यरूशलेम गया था एक गधे पर बैठ के, तो लोग वहां पर होसन्ना होसन्ना नारे लगा रहे थे। The whole city was stirred and asked each other, who is this person? और पूरा शहर जो था वो आश्चर्यचकित था, पूछ रहा था कौन है ये व्यक्ति। They asked the right question but got the wrong answer. उन्होंने सवाल तो सही पूछा लेकिन जवाब उनको गलत मिला। The crowd answered, he is a prophet. और किसी ने कहा ये तो भविष्यवक्ता है, As a prophet from Nazareth. नाजरत का ये नबी है। No, he had authority over nature. उसके पास प्रकृति के ऊपर अधिकार है। He had authority over the evil spirit. दुष्ट आत्मा के ऊपर उसका अधिकार है। He had authority to forgive sins. उसका पापों को क्षमा करने का अधिकार उसके पास He है। had authority over death. और मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है। He had authority over sickness. और बीमारी के ऊपर उसका अधिकार है। But he is not a prophet. लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है। Then who is? तो फिर वो कौन है? No, every time, is there anything the history talks about it, or the world history? और जो हम संसार का जो इतिहास देखते हैं उसमें इसका वर्णन है। You know, every time a person writes 2021, he proclaims the arrival of Jesus Christ. जब भी कोई व्यक्ति 2021 लिखता है तो वो यीशु मसीह के आगमन
की घोषणा करता है. Whenever he writes 2021, he actually says it is 2021 years since Jesus came into this world. और जब लिखते हैं 2021, इसका तात्पर्य होता है कि यीशु मसीह के इस संसार में आने के बाद 2021 साल पूरे हुए. When we look at history, if you want to study anything, say if any incident happened 3,000 years before, अगर कोई ऐसी घटना देखना चाहते हैं तो जो शायद 3000 पहले हुई आज से, no, we don't say that it happened 3,000 years before. We say it is 1,000 years before Jesus was born to this world. तो उसमें हम कहेंगे कि आज की तारीख से देखें तो वो 1000 ईस्वी या ईसा पूर्व उसको बोला जाएगा. Yeah. So he came into the world and divided the history into two, world history into two. तो वो उसने इस संसार में आके पूरे इतिहास को दो में भाग कर दिया. He is the center of the world history. और जो संसार की जो पूरा इतिहास है वो उसका केंद्र बिंदु है. Without him, there is no history at all. उसके बगैर कोई इतिहास बनता ही नहीं. Then, but still, the people ask who he is. Who is he? फिर भी लोग पूछते हैं कि ये कौन है. Someone please read 1 John chapter 1 verse 1. 1 John chapter 1 verse 1. Someone read please quickly. Keep your Bibles ready, please. That which was born in the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. And that verse 2 also. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life, which was with the Father, and was manifested to us. Yeah, we saw him with our eyes. हमने उसको अपनी आंखों से देखा है. We looked at his life. हमने उसके जीवन को देखा है. We heard him speak. हमने उसको बोलते हुए सुना है. We touched him. हमने उसको छुआ है. We proclaimed him to you. और हमने उसके बारे में तुमको बताया है. He was from the beginning. वो प्रारंभ से था. He was with the Father. वो पिता के साथ था. And he is the eternal life. He is eternal. And he is the eternal life. और वो जो है वो अनंत काल है. You know, it was written by a person who was with Jesus for 3.5 years. और इसको लिखा गया ऐसे व्यक्ति ने जो यीशु के साथ 3.5 वर्ष तक था. He saw all that Jesus did. उसने सब कुछ देखा जो यीशु ने किया. And he says, I looked at Jesus. We carefully looked at his life. और उसने कहा कि हमने बहुत ध्यान से यीशु के जीवन को देखा है. Now we proclaim he was the one who was in the beginning. और अब हम इस बात की घोषणा करते हैं, प्रचार करते हैं कि वही है जो शुरू से था. So what beginning he was talking about? तो ये किस शुरुआत की बात कर रहे हैं? He was talking about the beginning of world, even before the world was created. और वो बात कर रहा है कि जिससे पहले सृष्टि करी गई उससे पहले की बात कर रहा है. He says even the world before the world began he was there. That's what he says. और सृष्टि करने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे. Another person who was with Jesus says this, 1 Peter 1:20. Someone read please. 1 Peter chapter 1 verse 20. Uncle, 1 Peter chapter 1 verse 20. 20, yes. Okay. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Yeah. He was chosen before the creation of the world. That's what he says. उसका चुनाव इस सृष्टि करने से पहले ही हो गया था. He was there even before the creation. और सृष्टि से पहले ही से ही यीशु मसीह थे. Paul, the man who saw Jesus in a vision, says this following thing. और पौलुस जिसने यीशु को अपने एक दर्शन में देखा था उसने ऐसा कहा. He says in Colossians chapter 1 verse 17, he is before all things. और कुलुस्सियों 1:17 में उसने कहा कि हर चीज से पहले प्रभु यीशु मसीह. That is before everything came into being. जिससे पहले हर चीज की सृष्टि हुई उससे पहले प्रभु यीशु मसीह थे. You know, all these things points out to one fact, that Jesus was there even before the creation of the world. और इन सारी बातों से यह सच्चाई सामने आती है कि इस संसार की सृष्टि से पहले से ही यीशु मसीह का अस्तित्व था. If you read Genesis chapter 1 verse 1, it says, in the beginning God.
और अगर हम उत्पत्ति का 1:1 पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर था। Now, in the beginning, there was nothing else except God. और आदि में कोई नहीं था परमेश्वर के अलावा, And there was no other person except him. और उसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। Now, all other people say Jesus was there before the creation of the world. अब बाकी लोग कहते हैं कि संसार की सृष्टि से पहले से यीशु मसीह थे। So that's the only meaning is the God who created everything, the God who existed before the creation came into this world. That's what the whole scripture talks about. और इसका मतलब वचन जो हम अब वास्तव में ये बताता है कि वो परमेश्वर जो जिसने सृष्टि करी, जो सृष्टि से पहले से मौजूद था, वो अपनी सृष्टि में आया। The created God came into this world as a human being. और जिस परमेश्वर ने सृष्टि करी, सृष्टि करने वाला परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे आया। Someone read please John chapter 1 verse 1 to 3. John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. So Hindi, Martha? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। Colossians chapter 1 verse 15 and 16 also. Colossians chapter 1 verses 15 and 16 as well. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Now there are so many verses that points out this fact that Jesus existed before the creation of the world and he is the creator of the world. और इतने सारे पद हैं हमारे सामने जो इस बात को बताते हैं कि सृष्टि करने से पहले से ही प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व था। And he is the creator of the universe. और वो ही इस संसार के सृष्टि करने वाले हैं। So he had authority over the nature, over natures. तो उनके पास अधिकार था, अधिकार है उस प्रकृति के ऊपर। And he had authority over evil spirit. दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। He had authority to forgive sin. पापों को क्षमा करने का अधिकार है। He had authority over sickness. और बीमारी के ऊपर अधिकार है। He had authority over death. और मृत्यु के ऊपर अधिकार है। He had all authorities because he is the eternal God who created everything. और सारा अधिकार उनके पास है क्योंकि अनंत काल के परमेश्वर वही हैं जिन्होंने सब चीजों की सृष्टि करी। So because of this reason, every human being has to have relationship with God, with Jesus Christ. इस कारण की वजह से हर मनुष्य का कर्तव्य है कि उसका एक संबंध प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए। This relationship also determines where we go after we die. और ये जो संबंध है इस बात का निर्धारण करेगा कि मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे। When you have relationship with Jesus, you go to him in heaven to live with him. और जब प्रभु यीशु के साथ हमारा एक संबंध होता है तब हम मृत्यु के पश्चात यीशु के साथ यीशु के पास पहुंच जाते हैं उसके साथ रहने के लिए। If a person do not have relationship with Jesus, और किसी का अगर यीशु के साथ संबंध नहीं है, he will end up in the place where the place was created by the devil and his angels. तो फिर वो उस जगह पहुंच जाएगा जो शैतान और उसके चेलों के लिए बनाई गई है। So it's very, very important for every human being, not only just Christians, every human being to have a relationship with Jesus. इसलिए बहुत आवश्यक है, ना ही केवल मसीहों के लिए, सबके लिए आवश्यक है कि यीशु को जाने और उसके साथ एक संबंध बना के रखें। So now it comes to our second question: is there any blessing
to have relationship with Jesus. अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि यीशु के साथ संबंध बनाने का क्या कोई आशीष का कारण है ये? Someone read please Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Yes, Hindi please. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. No, these spiritual blessings cannot be seen by our eyes. ये जो आत्मिक आशीष हैं उनको हम आंखों से वास्तविक रूप में नहीं देख सकते हैं, But we claim them by faith लेकिन उनको हम विश्वास के द्वारा उन्हें हम प्राप्त करते हैं, because the Bible says so. क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है. We can divide these spiritual blessings in two parts. और ये जो आत्मिक ये जो आशीष हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं. Number one, my position in Christ. पहला ये कि मेरा क्या स्थान है यीशु मसीह के नजर में, And secondly, my possession in Christ. और दूसरा यीशु मसीह में मेरे पास क्या है. What is my position the moment I build my relationship with Jesus? जैसे ही मैं यीशु के साथ एक संबंध बनाता हूं तो मेरा क्या स्थान बनता है. Someone read please Romans chapter 5 verse 2. Romans chapter 5 verse 2. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Hindi please. जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें. No, through Jesus Christ we enter into God's grace. और यीशु मसीह की वजह से हम परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करते हैं. Just because we build relationship with Jesus, we stand in God's grace. और जब हम यीशु के साथ संबंध बनाते हैं तब हम परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े होने पाते हैं. Grace simply means unmerited favor. और अनुग्रह का मतलब होता है कि बिना हमारे कुछ कमाए हुए हमने एक परमेश्वर के पाया है, परमेश्वर को प्राप्त किया है. I don't deserve his favor. और परमेश्वर की ओर से कुछ भी प्राप्त करने के मैं लायक नहीं हूं. But because I have Jesus in my life, God looks at me with favor. लेकिन क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह है इसलिए परमेश्वर ने मुझे अपनी कृपा दृष्टि करी है. You know, the Greek word used for this English word access means two things. और जो यूनानी शब्द जिसका प्रयोग हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, उसके दो मतलब. The first meaning is ushering someone into the presence of the royalty. और पहला मतलब तो ये है कि राज घराने में या राजा शासक के सामने किसी को सामने लेके आना, प्रस्तुत करना. No, when we build the relationship with Jesus, Jesus ushers us into the presence of the God, presence of the Creator God. और जब हम यीशु मसीह के साथ संबंध बनाते हैं तो यीशु मसीह हमको सृष्टि करने वाले परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, लेके आते हैं. When we go into His presence, we find only grace there for us. और जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो हमें अपने लिए केवल अनुग्रह दिखाई देता है. No condemnation, no judgment for whatever we did. और जो कुछ भी किया उसके लिए हमें न्याय नहीं दिखता है, but only grace. लेकिन सिर्फ अनुग्रह दिखता है. That's what happens in our life when we come to Jesus and accept Him in our lives. और ये होता है जब हम यीशु मसीह के सामने आते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं. The second meaning comes out of the Greek word access is. और दूसरा मतलब जो यूनानी शब्द से निकल के आता है उसकी उपस्थिति में आने का, वो ये है. You know, this word is used for harbor where ships enter into. और दूसरा जो शब्द है वो बंदरगाह के लिए प्रयोग किया है जहाँ पे जहाज पानी के आते हैं. No, as long as the ship was in the open sea, it was hit by tempest storm. और जब तक वो जहाज जो है वो खुले समुंदर में है तो उसमें आंधी तूफान कुछ भी उस पे आता रहता है. But once it entered into harbor, it is safe and secure in that place. लेकिन जब एक बार जहाज बंदरगाह में आ जाता है तब वो जो है सुरक्षित हो जाता है. So what Paul means is
when we lived our lives in our own way, और पौलुस यहाँ पे कहता है कि जब अपना जीवन हम अपने जीवन को अपने प्रकार से जी रहे थे, we were tempest tossed. तो उस समय में तो हम आंधी तूफानों की तरह हम लोग हवा में उड़ रहे थे, repeatedly hit by different lives of storm in our lives, और अलग अलग प्रकार के आंधी तूफान हमारे जीवन में आ रहे थे, and tossed away in every direction. और हर दिशा में हम जो थे वो विचलित हो रहे थे. But once we build the relationship with Jesus, we enter into God's presence where we are safe. लेकिन एक बार जब प्रभु यीशु के साथ संबंध हमारा बनता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं जहाँ पे हम सुरक्षित हैं. We enter into God's grace where we find safety and security. और परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और अनुग्रह में आते हैं जहाँ पे हमें सुरक्षित महसूस होते हैं. But according to the verse, not only we entered into the grace, but we continue to stay in that grace. और इस पद के अनुसार न केवल हम उसके अनुग्रह में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके अनुग्रह में बने रहते हैं. As long as we live in this world, we live in the grace of God. जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं. So the first position we got is that we enter into God's grace and continue to live in God's grace. तो पहली चीज जो हमको प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होती है कि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और उसके अनुग्रह में ही बने रहते हैं. So the second position we have in Christ is, और दूसरी चीज जो हमको प्राप्त होती है वो ये होती है, I am forgiven and reconciled. कि मैं क्षमा प्राप्त मुझे हुई है और मेरा प्रभु के साथ मेल मिलाप हो गया है. Someone read please 2 Corinthians chapter 5 verse 19. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Yes. अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया. उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. Now I said forgiven and reconciled. मैंने जैसे कहा कि क्षमा प्राप्ति और मेल मिलाप. Because without forgiveness there is no reconciliation. क्योंकि क्षमा प्राप्ति के बगैर मेल मिलाप नहीं हो सकता. God cannot reconcile himself to a sinful person. परमेश्वर अपने आप को किसी पापी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता. A man stand before God as his enemy because he was living in a sinful life. और मनुष्य है वो एक शत्रु के समान परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बताए हुए नियम कानून और व्यवस्था के विरोध में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था. James 4:4 says, याकूब 4:4 में लिखा है, anyone who chooses to be a friend of the world becomes the enemy of God. और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो ये चुनाव करता है कि वो इस संसार का मित्र बनेगा, वो परमेश्वर का शत्रु बन जाता है. Man with all his sins stands for God as his enemy. और एक मनुष्य अपने सारे पापी जीवन के साथ में परमेश्वर के सामने एक शत्रु के रूप में खड़ा रहता है. And Christ by his death took all man's sin and made him a righteous person. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मनुष्य का सारा पाप लेकर के उसको एक सिद्ध व्यक्ति बना दिया. When we believe in Jesus, I become a righteous person in the sight of God. जब मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में मैं सही ठहराया जाता हूँ. Now God has no problem in reconciling himself to us because I am a righteous person in his sight. और अब परमेश्वर जो है वो मेरे साथ मेल मिलाप कर सकता है, क्योंकि अब उसकी दृष्टि में मैं सही ठहराया गया हूँ. Rome 5:10 says, when we were God's enemies, we were reconciled to God through the death of his son Jesus. और रोमियो 5:10 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया गया है. So now my position is I am forgiven and reconciled to God. I am not God's enemy anymore, or God is not my enemy anymore. तो अब मेरा जो स्थान है वो ये है कि मुझे क्षमा प्राप्ति हुई है और प्रभु के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया है. अब मैं उसका शत्रु के रूप में नहीं हूँ. I did not have access to his presence before. Now I can go into his presence whenever we want. और इससे पहले मैं स्वतंत्र रूप से उसकी उपस्थिति में नहीं जा पाता था, लेकिन अब
मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। I have absolute freedom to go into His presence और उसके उपस्थिति में जाने का पूर्ण स्वतंत्रता मेरे पास है, because I am forgiven and I am reconciled to God. क्योंकि मुझे क्षमा प्राप्ति हुई है और प्रभु के साथ मेरा मेल मिलाप हुआ है। Someone read please Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yes. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। So God, we have peace with God and we can enter into God's presence whenever we want. तो परमेश्वर के साथ हमें अब शांति प्राप्त हुई है और हम उसकी उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं। God has not told us not to come into His presence now after once we come to Jesus. और यीशु मसीह के पास आने के बाद उसके कारण अब हमसे प्रभु नहीं कहता है कि मेरी उपस्थिति में तुम नहीं आ सकते। But the problem is with us, we don't go into His presence. लेकिन समस्या हमारे साथ है, हम उसकी उपस्थिति में नहीं जाना चाहते। He is always there to listen to us and listen to our prayer and talk to us. वो सदैव उपस्थित रहता है, हमारी बात सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, बातचीत करने के लिए वो सदैव उपस्थित रहता है। But the thing is, we do not have time to be in His presence, enter into His presence, talk to Him, or listen to His voice. लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उससे बात करें और उसकी आवाज को सुनें। So if you are not building up a relationship with Jesus, with God, it is basically our mistake, our problem. तो जब हम अगर प्रभु के साथ, यीशु के साथ अपने संबंध को नहीं बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये समस्या हमारे साथ है। So our position, we stand in grace, we enter into His grace and stand in His grace. तो हमारी जो हमने प्राप्त किया वो क्या प्राप्त किया है कि हमने उसकी क्षमा को प्राप्त किया है और हम उसकी उपस्थिति में उसको उसके अनुग्रह को प्राप्त किया है हमने। And I am forgiven, reconciled, and I have peace with God. और मुझे क्षमा प्राप्ति हुई है, मेरा मेल मिलाप हुआ है और शांति प्राप्त हुई है प्रभु के द्वारा। And my third position is I am a child of God. और जो तीसरी बात जो मुझे प्राप्त हुई है वो ये है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Ephesians chapter 1 verse 3 to 5. Somebody please. Ephesians chapter 1, 3 to 5. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in our heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless to His sight in love. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Yes, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। So according to this verse, God has accepted us as His children. तो इन पदों के अनुसार परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है अपने संतान के रूप में। Galatians 3:26, you are all sons of God. और गलतियों 3:20 में लिखा है कि तुम सब परमेश्वर की संतान हो। So I am a child of God, so I can call God as my father. तो अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं तो मैं उसे अपने पिता के रूप में बुला सकता हूं। No, there are so many verses in the Bible that talks about this relationship. और वचन में कितने सारे पद हैं जो इस संबंध को बताते हैं। But I would like to just read one verse. लेकिन एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। You know, in Romans 8:15, we cry, Abba, Father. और रोमियो 8 और 15 में लिखा हुआ है कि हम उसको अब्बा कह करके बुलाते हैं। We can call God Abba, Father. उसको हम अब्बा या पिता कह के बुला सकते हैं। No, till then it was used only for Jesus to call His Father.
और उस समय तक केवल प्रभु यीशु मसीह ही इसका प्रयोग करते थे पिता को बुलाने के लिए। Only Jesus was able to call God as his Abba Father. केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सकते थे। Now in Christ, we have the freedom to call God as our Abba Father. लेकिन अब यीशु मसीह में हो करके हमें यह स्वतंत्रता दी गई है कि हम भी परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। You know, that's a great freedom that we have the position we have in Jesus. और ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता हमको मिली है और स्थान हमको यीशु मसीह में मिला है। So if he is my father, he is my provider, he is my guide, and he is my God. तो अगर वो मेरा पिता है तो फिर वो मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, वो मुझे मार्गदर्शन करने वाला है और वो मेरा पिता है। And he loves me and he loves me and disciplines me and takes me into his right path. वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे ताड़ना भी देता है और अपने अनुसार मुझे सही मार्ग पर भी लेके जाता है। So this is my position the moment I come to Christ. तो जैसे ही मैं यीशु मसीह के पास आता हूँ तो ये मेरा जो है वो मेरा स्थान बन जाता है। So my position in Christ is I have entered into God's grace and I will continue to stay there. तो हमारा स्थान ये बन जाता है और ये हमें प्राप्ति होती है इस बात की कि हम यीशु मसीह को प्राप्त किए हैं, उसके अनुग्रह को प्राप्त किया है। I am forgiven and reconciled. I am not the enemy of God anymore. I have peace with God. और मैंने प्राप्त किया है उसके क्षमा को प्राप्त किया है। अब मैं उसका शत्रु नहीं हूँ, अब मेरा उसके मेल मिलाप हो चुका है। And I am a child of God. I am under his care and control all the time. और मैं उसकी संतान हूँ और अब मैं हमेशा उसी की देख रेख में रहता हूँ। So these are the position we have in Christ. तो ये सारी चीजें हैं जो परमेश्वर में यीशु मसीह में के द्वारा हमने प्राप्त करी। So what are my possession in Christ? और अब जो हमने इससे ग्रहण किया है वो क्या है? Number one is eternal life. जो ग्रहण किया है हमने इससे वो ये है, वो है अनंत काल का जीवन। Someone read please John 3:36. John 3:36. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Yes. Romans 6:23. Roman. Hindi please. Read in Hindi also. John 3:36 please in Hindi. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Yeah. Romans 6:23 also. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yeah. Hindi please. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Yeah. So whoever believes in the Son has eternal life. जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। Gift of God is eternal life in Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए उपहार ये है कि परमेश्वर की ओर से उपहार ये है कि यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। Jesus said in John 5:24, whoever hears my voice and believes him who sent me has eternal life. और यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा कि जो भी मेरी आवाज को सुनता है, जिसने मुझे भेजा, उस पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत काल का जीवन रहेगा। See, all these verses said we have eternal life. ये सारे पद बताते हैं कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है। It says eternal life we have now. It's not something we will get after we die. और ये है कि ये अनंत काल का जीवन अभी वर्तमान में हमारे पास है। According to John, we experience eternal life the moment we accept Jesus in our life. और यूहन्ना के अनुसार जिस क्षण हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस क्षण से हम अनंत काल के जीवन का आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। That we experience eternal life on earth with Jesus here. कि हम वर्तमान में इस पृथ्वी पर यीशु के साथ ही अनंत काल के जीवन का आनंद उठाना शुरू कर देते हैं। The earth we live with him. और इस पृथ्वी में उसके साथ रहते हैं। And when we die, we live with him in heaven. और जब हम मृत्यु हो जाती है तो फिर स्वर्ग में उसके साथ रहते हैं। So our eternal life starts here. तो हमारा अनंतकाल का जीवन यहीं पर शुरू हो जाता है। But another opinion say when you die, you get eternal life. लेकिन दूसरा सोच वो ये कहती है कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें अनंतकाल का जीवन प्राप्त होगा। Fine with me. वो ठीक है।
Either way, I have the eternal life. जैसे भी सोचें, लेकिन अनंत काल का जीवन मेरे पास है। So my main position, the great position that I have in Christ is that I have the eternal life. तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने धन जो प्राप्त किया है, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करी, वो है कि अनंत काल का जीवन मेरे पास है। The second position I have is all God's promises. और दूसरा बात जो मैंने ग्रहण करी है परमेश्वर से, वो है उसके सारे जो वायदे उसने किए, वो सारे वायदे मेरे साथ हैं। 2 Corinthians 1:20. Someone read please 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Yes. Indy, please. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। No, I am in possession of all God's promises. परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब मेरे साथ हैं। In Christ, I can claim all the promises. सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो प्रभु यीशु में हो करके वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। Somewhere I read there are about 7,487 promises that are there in the Bible. कहीं मैंने पढ़ा कि 7,487 प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं वचन में मेरे लिए। Very often when we read the Old Testament, we might feel, okay, these are not for me. It's Old Testament promises. और कभी कभी पुराने नियम में हम सोच सकते हैं कि ये तो पुराने जमाने की बात है, ये सारी बातें अब शायद मेरे लिए नहीं है। But Paul says every promise in the Bible belongs to you and me. पौलुस कहता है हर एक वायदा प्रतिज्ञा वचन में वो सब हमारे लिए है। You know, God's promises are like walking stick. प्रभु परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो एक चलने वाली लाठी, सहारे की लाठी के समान होता है। When you struggle to walk in your life, when you go through a lot of problems, difficulties, जब जीवन में चलने में संघर्ष का सामना करते हैं, when you feel like almost giving up, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो बस हम छोड़ दें, God's words helps you like a walking stick to go on. तो परमेश्वर के जो शब्द हैं वो सहायता करते हैं उस लाठी की तरह कि हम आगे उसके सहारे चलते रहें। You know, my walking stick is Isaiah chapter 41 verses 9 and 10. Somebody read please. This is my favorite verse in the Bible. Isaiah 41 9 and 10. I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hindi, please. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। You know, whenever we are down and out, God always speaks to us through His word. Those are like walking stick to go on in life. और जब भी जीवन में हम गिरा हुआ महसूस करते हैं और बुरे समय से गुजरते हैं, तो प्रभु के वचन जो है वो उस सहारे की लाठी के समान हमारी सहायता करते हैं। But we can have the walking stick only when we spend time in reading His word. लेकिन वो सहारा वचन का हमें जब भी मिल सकता है जब हम वचन को पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे। Very often when we go through pain and struggle, we stop reading the Bible. और जब कभी हम संघर्ष से गुजरते हैं तो सबसे पहले तो हम वचन को पढ़ना ही बंद कर देते हैं। That see, you go through a lot of problem with peacelessness, but you know there is peace in God's word, but we don't turn to God's word. और समस्याओं से गुजरते हैं और अशांति से गुजरते हैं, मालूम है कि वचन में शांति मिल सकती है, सहायता मिल सकती है, लेकिन उसको हम नहीं करना चाहते। Use God's word as walking stick to go on in your life. परमेश्वर के शब्दों को एक सहारे के लाठी की तरह उपयोग करिए ताकि जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ते रहें। So God's promises are our possession. परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं ये हमारा धन है। We can tell God, Lord, you promised like that, so fulfill your promise in our life. और हमें अधिकार है कि परमेश्वर के साथ हम ये तर्क वितर्क कर सकते हैं कि प्रभु ये तो आपका प्रतिज्ञा है मेरे लिए, तो इसको आप पूरा कीजिए मेरे जीवन में। So our position in Christ is, तो
हमारा क्या स्थान है प्रभु यीशु मसीह के, We entered into His grace and continue to stay in His grace. कि हम उसके अनुग्रह में हमने प्रवेश किया और उसके अनुग्रह में हम रहते हैं. We are forgiven and reconciled to Him. We are not enemy of God anymore. हमें पापों की क्षमा मिली है, हमारा मेल मिलाप हुआ, अब हम उसके शत्रु नहीं हैं. And we are His children. और हम उसके संतान हैं. And our position in Christ is, और हमारा जो धन है परमेश्वर में, यीशु में, वो ये है, we have eternal life. कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है. And we have all God's promises as our possession. और सारे परमेश्वर के जो वायदे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो हमारा धन है. So these are the position we cannot experience in our lives. अब ये ऐसे धन है जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं. These are the fact that we have to accept in our lives in faith. लेकिन ये सारी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं. When we accept in faith and follow them in our lives, you are filled with joy and peace which nobody can give you. जब विश्वास में इनको हम स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब हमें वो शांति प्राप्त होती है जो हमें कोई और स्रोत से नहीं मिल सकती. So if we do not have the relationship with Jesus, we lose both this position and our position. तो जब यीशु के साथ हमारा संबंध गहरा नहीं होता है, तो हमारा जो स्थान है वो भी नहीं रहता, और जो हमारा धन है उसमें वो भी हमको प्राप्त नहीं होता. So it's important for every human being to have the relationship with Jesus and continue to have the relationship with Jesus. इसलिए हर एक मनुष्य के साथ ये आवश्यक है कि वो यीशु के साथ उसका संबंध बने और उस संबंध में वो बना रहे. So the question we have to ask ourselves is, तो जो सवाल हमें अपने आप से पूछना है वो ये है, do we have that in the relationship with Jesus? क्या यीशु मसीह के साथ उस प्रकार का संबंध मेरा है कि नहीं? I know most of us are having the relationship with Jesus in our church. मैं जानता हूँ हम में से बहुत हैं जो अधिकतर का ये संबंध यीशु के साथ है. In case if you have the doubt, अगर आपके मन में कोई शंका है, go back to Him तो उसके पास वापस जाइए and tell you, Lord, I want to build my relationship or renew my relationship with you. और कहिए कि मैं अपने संबंध को बनाना चाहता हूँ या दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ. When you do that, और जब आप ऐसा करते हैं, you will have the assurance that you have God with you all the time. तो ये भरोसा आपको पास रहेगा कि परमेश्वर सदैव आपके साथ है. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. आशीष करें. Heavenly Father, we thank you for sending your son Jesus into our lives. धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे जीवनों में भेजा. And Lord, even though we were not present when he actually came, but when we read in your word and we are so filled with the truth and the fact that your gospel is life changing for us, even when we are sitting 2000 years away. और प्रभु जी, भले ही हम उस समय में पैदा नहीं हुए, लेकिन आपको वचन को जब पढ़ते हैं तो सच्चाई हमारे दिल और दिमाग में इस प्रकार से भर जाती है कि उसका जो असर है वो आज भी हमारे दिल और दिमाग पे, जीवनों पे 2000 वर्ष के बाद भी वैसे ही सा होता है. Lord, we pray that as we have entered this time of Advent, you'll help us to specifically focus on the person and work of our Lord Jesus Christ. प्रभु जी, जब हम इस परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के महीने में प्रवेश करें हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति और जो उसका कार्य है हमारे जीवन के लिए, इस संसार के लिए, उस पे हमारा ध्यान केंद्रित रहे. Help us, Lord, not to get carried away by all the festivities the way people have made it, but to remain focused on you. प्रभु जी, हमारा सारा ध्यान भटक ना जाए सारे त्योहार की तैयारियों में, जैसा कि आज बना दिया गया है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित रहे. Help us, Lord, to ensure this month that we belong to you. प्रभु जी, इस पूरे महीने होने दीजिए कि इस बात का हमें अटूट भरोसा मिल जाए कि हम आपकी संतान हैं. Thank you, Lord, for this word. We ask this in Jesus' precious name. Amen.